Hello students, welcome to the e-learning classes conducted by JetQuest International School. Okay, today we are going to discuss about a topic infectious diseases and their prevention. Before starting towards the main topic, that is infectious diseases and their prevention, we will just have a overlook on what is a healthy person, what is mean by health, and what is mean by diseases, or what is a diseased one. Okay, so let us have a look at that. So first topic of today that we are going to discuss is health. अभी फिलहाल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और उसमें बहुत सारे लोग नेगेटिव है, मीन्स दे आर नॉट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द डिसीज. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी के सभी लोग हेल्दी है. ओके, इफ यू आर नॉट हैविंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीज देन it does not mean at all that you are totally fit and fine. It does not mean that you are healthy. No. So first of all, we should know what is an health and what is a sign of an healthy person. ठीक है, health is actually measured in three areas. First, social aspect. Second, mental aspect. And third, फिजिकल वन. ऑब्वियसली कि हम फिजिकली कैसे है, कि मैं रनिंग कर पा रहा हूँ या नहीं, क्या मैं जल्दी थक रहा हूँ. ठीक है, वॉट एवर थिंग्स आर देयर अबाउट हेल्थ, सो दैट ऑल्सो इज एन एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट. And putting them all together, so the state of physical, social and mental well-being of an individual is called as its health. अगर कोई इंसान है, उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी रास्ते से जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको ऐसे पत्थर मारते हुए जा रहा है, और कोई पर्सन है जिसके सामने डस्टबिन रखा होता है, ठीक है, फिर भी जानबूझ के वो डस्टबिन को एक बास्केट समझ के गोल मारने की कोशिश कर रहा है, साइन ऑफ एन अनहेल्दी पर्सन. ठीक है, और मेंटल, ठीक है, मीन्स दे डू नॉट नो वेयर टू टॉक, व्हाट टू टॉक, सो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एन अनहेल्दी पर्सन, राइट. सो हेल्थ एक्चुअली शुड नॉट बी रिलेटेड ओनली with comparison to the physical, whereas it is also with the mental as well as the social well-being of an individual. All right, now how to maintain health, how to be healthy. चलो ठीक है, हमको ये तो समझ गया कि हेल्थ क्या है, ठीक है, बट अब हेल्दी कैसे रहा जाए. फर्स्ट थिंग, पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, द थिंग्स दैट द हैबिट्स दैट यू हैव, डेली हैबिट्स, like the water that you drink, all right, then the food that we eat, the environment in which we live, the sanitary habits. Okay, how many times we wash our hands, if we touch any object, any random place, if we go to any random place, then coming back from home, what are our habits. So these all comes under the personal hygiene, and personal hygiene is very necessary to stay healthy. Okay, then second, ये तो पर्सनल एस्पेक्ट हो गया, बट हमको रहना कहाँ पर है, सोसाइटी में, तो सोसाइटी भी क्लीन होनी चाहिए. ठीक है, सो सोशल एस्पेक्ट, पब्लिक क्लीनलीनेस. पब्लिक क्लीनलीनेस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इंडिविजुअल्स हेल्थ. एक किसी इंसान की हेल्थ डिपेंड करती है कि सोसाइटी कैसी है. कि अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ और हर जगह पर लोग कचरा डाल रहे हैं, ठीक है, मीन्स एवरीवेयर स्टिंगिंग स्मेल इज देयर, गंदी बास आ रही है. यहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म है जो फ्लाइज उड़ के जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म है जो स्मेल कर रहे हैं बहुत सारा. दिस विल बी एन अनहेल्दी एनवायरमेंट एंड यू विल possibly be ill, you will possibly fall sick. Okay, so to prevent that, public cleanliness is very important. All right, so these are some health concern. Okay, these are some health concerns, means which we need to follow, that is personal hygiene, public cleanliness, these all should be there for a person to stay healthy. Okay, next we will see now disease. What is a disease condition? See, the definition is given. This is a word made up of two words. First is dis. Dis means what? Dis means disturb. And what is mean by ease? Ease का मतलब क्या होता है? Comfort zone, right? Comfort. If a person's comfort zone is disturbed, if a person is not comfortable at all, whether it is physically, whether it is mentally, then that condition can be called as a disease. अब डिसीज कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं हमको पता है, ठीक है. कुछ डिसीज आज है, कल सुबह गायब. कोई डिसीज है जो बर्थ के पहले से है. कुछ डिसीज है जैसे कोविड-19 जो कहीं पे और प्रोड्यूस हो गया और कहीं तक आ गया, बराबर है. और कुछ डिसीज होते हैं जो बाय बर्थ रहते हैं और जो हमेशा तक साथ चलते हैं, ठीक है. सो डिसीज की क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट देखो, एक्यूट. एक्यूट मतलब क्या? विच हैविंग वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, विच इज हैविंग वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. आज मुझे सर्दी हुई,
एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उसकी वजह से आज हमको सर्दी हो गई। और फिर क्या हो गया, हमने कुछ छोटे मोटे घरेलू उपाय जो बोलते हैं हम, ठीक है, होममेड नुस्खे जो रहते हैं वो हमने आजमाए और फिर हमारी सर्दी गायब हो गई, लाइक काढ़ा एंड ऑल पीते हैं, ठीक है। सो सो दैट कैन बी एक्यूट कि 1-2 दिन 3 दिन मैक्सिमम, एंड देन दैट डिसीज इज नो मोर। बट क्रॉनिक क्या होगा कि बचपन से मुझे छींकें आती है, ठीक है, कि बचपन से मुझे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे मेरे को सर्दी और बुखार हो रहा है। एनी पर्सन, यू आर एट होम, योर होम ऑल्सो यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस, सो दैट इज एन क्रॉनिक थिंग। ओके, नाउ इन्फेक्शियस इन्फेक्शंस का डर किससे है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्शन मतलब क्या? इन्फेक्शन मीन्स टू गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स। सोर्स कौन होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अनहेल्दी एनवायरनमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज आर, दे आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीज, कि वो एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करेंगे। कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कम्युनिकेट बाय द मीन्स ऑफ, they will communicate by the means of personal contact, they may communicate by water, they may communicate by air. So there are many diseases which can get spread by several reasons. There are several reasons for which are responsible for spreading the disease, and such a diseases are termed under the infectious. Viral diseases, bacterial infections, these are all termed under infectious diseases. Then non infectious मतलब क्या? जैसे कि डायबिटीज है, कि एक पर्सन के साथ आज आपने चाय पिया और आपको डायबिटीज हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डायबिटीज जो है वो एक इनबॉर्न खुद के अंदर हो रहे चेंजेस है, जो कम्युनिकेट नहीं करते, जो स्प्रेड नहीं होते हैं, ठीक है, दे डू नॉट स्प्रेड। सो दिस इज एन different type, that is non-infectious disease. Okay, and obviously these all diseases, some are having deteriorative effect, means they are having, a strong effect on the body, permanent effect, and some are having effects which can be vanished after treatment. Okay, if proper treatment is taken for a प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन, जितना डॉक्टर ने बोला है उतना समय तक, क्योंकि हम लोगों के ज़्यादा दिमाग चलते हैं। अगर हमको 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप दे तो भैया 5 दिन का दे दो, ठीक है, वो 5 दिन के 2-3 दे देता है, खत्म। दिस शुड नॉट बी देयर। ड्रग्स वगैरह पूरे अगर लोगे तभी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस से छुटकारा मिलेगा, अदरवाइज दे विल स्टे विथ यू। Okay, until you are, they will be there with you. All right, so now we will study in this main today's video is about infectious diseases. Okay, so we will start with the, before that let us clear some confusing term. इसमें बहुत सारा लोगों को confusion है कि डिसीज कॉजिंग पैथोजन क्या है, फिर साइन और सिम्टम में क्या डिफरेंस है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या इनमें डिफरेंस है। लेट अस क्लियर। डिसीज कॉजिंग पैथोजन मतलब क्या? एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज एंटरिंग आवर बॉडी इज अ पैथोजन। अब वो डिसीज कर रहा है तो वो डिसीज कॉजिंग हो गया, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भले ही वायरस नहीं है, बट इट इज स्टिल अ पैथोजन, ओके, बिकॉज इट इज एंटरिंग आवर बॉडी कॉजिंग अस अ वायरल डिसीज, सो इट इज स्टिल अ pathogen. That's why I have here given the word pathogen, not microorganism. Okay, so the microorganism due to which a particular disease has caused is a disease causing pathogen. ये इसके बाद समझ लेना, ठीक है। अब साइंस और सिम्टम, ये दो चीजों में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है सिम्टम लिखो, आप साइंस लिख देते हो, और क्वेश्चन आता है राइट डाउन साइंस एंड सिम्टम, आप दोनों सेम ही लिख देते हो। तो ये नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर डिफरेंशिएशन। साइंस मतलब क्या? द चेंजेस दैट अ पर्सन हिमसेल्फ कैनॉट फील, मतलब समझ लो, फॉर एग्जाम्पल माई आईज माई नेल्स हैव बिकम येलो। कौन से डिसीज में होता है ये? जॉन्डिस में, ठीक है, जिसको हम काविड बोलते हैं। काविड डिसीज जो होता है वो काविड डिसीज में क्या होता है? जॉन्डिस में आवर नेल्स स्टार्ट टर्निंग येलोइश, आवर आईज अपीयर येलोइश। ये खुद को थोड़ी ना दिखेगा, ठीक है, ये सामने वाले को दिखता है। पीपल विल पॉइंट आउट, अरे आज तेरी आंखें थोड़ी सी येलोइश लग रही है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, डू चेक। ओके, और हमारी स्किन का अगर कलर चेंज हो गया तो लोग देखते हैं कि आज तेरी स्किन का कलर थोड़ा डल लग रहा है, इज देयर एनी प्रॉब्लम। वो भी एक डिसीज होता है, काला आजार करके, जिसमें हमारी बॉडी थोड़ी सी ब्लैक स्किन हो जाती है, वो भी एक डिसीज है। सो ऑब्जर्वेशंस, तो ये जो ऑब्जर्व करेंगे लोग उनको हम बोलेंगे साइंस। दैट अ फिजिशियन, डॉक्टर के पास गए, वो आपको देख के बता सकता है अरे वीक हो गया। ओके, सो दीज आर द लॉस, वेट लॉस, जिसका हमको उतना समझ में नहीं आएगा, बट सामने वाले देखने वालों को वो तो बोलेगा अरे 4 दिन पहले तेरे को देखा था, तू तो अच्छा खासा था, अब एकदम पतला हो गया। सो दिस इज अ साइन। ओके, सिम्टम क्या हुआ? मेरा सिर दुख रहा है, ठीक है, आज बहुत सिर दुख रहा है, हेवी काम हो गया, बहुत सिर दुख रहा है, तो ये क्या हो गया? सिम्टम हो गया। और ये सिम्टम मुझको फील हो रहा है, ठीक है, फीवर बहुत गर्म एकदम, मुझे ठंडी लग रही है, थोड़ा सा भी
फैन बंद करो, ये किसको फीलिंग हो रहा है? ये खुद को फीलिंग हो रहा है. सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज. अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे. ठीक है, कि ट्रीटमेंट मतलब क्या और प्रिवेंशन मतलब क्या, इसमें भी कंफ्यूजन है. आपको भी क्वेश्चन पूछा जाए, राइट द मेथड मेजर्स ऑफ ट्रीटमेंट, और प्रिवेंशन लिख देते हो, प्रिवेंशन बोला तो ट्रीटमेंट लिखते हो. ये नहीं होना चाहिए. इसके बाद ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट मतलब क्या, कि अगर मुझे बुखार है, सो देयर मस्ट बी अ मेडिसिन टू रिड्यूस माई फीवर, टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ माई बॉडी. ठीक है, एनाल्जेसिक बोलते हैं उसको. ठीक है, सो एनाल्जेसिक मस्ट बी गिवन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम. जो सिम्टम है उसके हिसाब से मुझे जो ट्रीटमेंट, जो मेडिकेशन मिलेगा वो मुझे फॉलो करना है. दैट विल बी द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट दो चीजों के लिए थे. एक तो पूरा कम करने के लिए, हमारा बुखार है तो बुखार कम हो जाए. अगर वो किसी वायरस वगैरह से है तो उसको किल करने के लिए भी ट्रीटमेंट हो सकती है. अगर बैक्टीरिया से है तो उसको किल करने के लिए भी ट्रीटमेंट हो सकती है. ट्रीटमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ओके. और प्रिवेंशन मतलब क्या, कोई डिसीज मुझे हो ही ना. ठीक है, कोई डिसीज मेरे लाइफ स्पैन में मेरे को कभी नहीं होना चाहिए, इसकी मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ. मतलब पानी, गंदा पानी पीने की वजह से कुछ लोगों को जॉन्डिस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कॉलेरा हो रहा है. ठीक है, और ये डिसीज मेरे को चाहिए कि ये मेरे को होने ही नहीं चाहिए. तो मैं क्या करूंगा फिर, आई विल मेक श्योर दैट द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग इज क्लीन, इज फिल्टर्ड, टू सम एक्सटेंट इट इज बॉइल्ड ऑल्सो. सो ये चीजें ध्यान हमको रखना पड़ता है. सो दिस आर द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट आर टेकन, मीन्स स्टेप्स टेकन फॉर नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड. जैसे कोरोना के टाइम में आपको बोला जाता है लॉकडाउन में घर के बाहर नहीं निकलना है, 4-5 लोगों में जाके नहीं बैठना है, मास्क खोलना नहीं है, इवन इफ यू आर सिटिंग विथ योर क्लोज रिलेटिव्स डू नॉट ओपन योर मास्क. ये क्या है? प्रिवेंशन है, कि हम बच रहे हैं कि हमको वो वायरस इन्फेक्ट ना करे. सो दिस इज द प्रिवेंशन. So this was about some confusing terms. Now let us move on towards the next topic, that is infectious diseases, जो हमारा मेन टॉपिक है आज. इन्फेक्शियस डिसीजेस कॉज करने वाले कौन होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं. ओके, द डिसीजेस विच आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स. इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं भी है, जो कि वायरस, वो भी एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है. इन्फेक्शन मतलब ही क्या? जो स्प्रेड हो सकता है. ठीक है, खुद की बॉडी में है और जो स्प्रेड होता है, बॉडी के अंदर भी स्प्रेड होता है, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं. ठीक है, दैट इट इज स्प्रेडिंग. बॉडी के बाहर भी स्प्रेड होगा, अंदर भी स्प्रेड होगा. ठीक है, and there are many organisms, wide variety of organisms can cause infectious diseases. So these are basically communicable and treatment depends on the category. मतलब अगर बैक्टीरियल डिसीज है तो उसके लिए एंटीबायोटिक है, और वो भी कभी कभी होता है कि वायरल डिसीज के साथ साथ, वायरल फीवर के साथ साथ कोई दूसरा वायरल बैक्टीरियल डिसीज भी हो जाता है. सो वो टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि हम कौन सी ट्रीटमेंट देंगे. वी विल गिव एंटीबायोटिक एज वेल एज द ट्रीटमेंट टू क्यूर द वायरल वन. ठीक है, तो दोनों डिसीज, ये डिपेंड करता है कि डिसीज कौन सा है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी क्या होगी. ओके, द स्ट्रेटेजी विल टोटली डिपेंडेड ऑन व्हाट इज द डिसीज. लेट अस मूव अहेड नाउ. हु आर द कल्प्रिट्स. कल्प्रिट्स यानी कौन है वो दोषी. ठीक है, जिनके वजह से ये जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है इनका डर हो रहा है. ये 5 लोग हैं. बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ मतलब क्या? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट प्रिमिटिव, सिंपल. वायरस, not included as microorganism but still has the power to infect. Then helminths. हेलमिंथ नाम का जब भी वर्ड आए समझ लो उसका मतलब है वर्म. वर्म, राउंड वर्म्स होते हैं. ठीक है, जैसे अर्थवर्म है या फिर एस्कैरिस है, या आप लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी, उसमें आपको ये पूरा पढ़ना है. वर्म्स का एक फाइलम होता है पूरा, वो एस्के हेलमिंथिस और निमेटी हेलमिंथिस, वो आप पढ़ोगे बाद में. सो हेलमिंथ समझ लो. कुछ हेलमिंथ्स है, कुछ वर्म्स है जो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, जो बॉडी के अंदर रह सकते हैं, ह्यूमंस के ही नहीं, कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के भी. सो ये आ गए इन्फेक्शियस कैटेगरी में. और फंगस. फंगस यानी अगर कहीं पर फूड पॉइजनिंग है तो वो किसकी वजह से हो? फंगस की. और उसके स्पोर्स उड़ के किसी दूसरे में खाने में गए, स्पॉइल कर दिया, उसका बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ, फंगल डिसीज. ओके, सो दीज आर द कल्प्रिट्स. नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन एंड देयर इफेक्ट्स. वायरस. सबसे पहला हमको पढ़ना है वायरस एज एन इन्फेक्शियस एजेंट. वायरस एज एन इन्फेक्शियस एजेंट. वायरस किस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है. सबसे पहले ये समझ लो, कॉमन कोल्ड, एड्स, सार्स, कोविड-19 आर सम डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस. ये कुछ डिसीजेस के एग्जाम्पल है जो वायरस कॉज करता है. अब वायरस है क्या? एक्चुअली इट इज कंसिडर्ड दैट वायरस इज अ डेड सेल. वायरस इज इनएक्टिव अनलेस एंड अनटिल इट अटैक्स अ होस्ट. जब तक वो किसी दूसरे के बॉडी में जाके अपना घर नहीं बसाएगा, जब तक उससे न्यूट्रिशन नहीं लेगा, तब तक उसको हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते. ओके, सो इट बेसिकली वैंडर्स एंड हैज अ लाइफ स्पैन. अगर कहीं पे उसको होस्ट नहीं मिल गया तो डेथ भी हो जाएगी.
बट जैसे होस्ट मिल गया तो उसके बॉडी का न्यूट्रिएंट लेगा और खुद मल्टीप्लाई करेगा. ही विल यूटिलाइज, वायरस विल यूटिलाइज द मशीनरी और द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, द होस्ट. ओके, सो बेसिकली ये दूसरे की बॉडी में जाके रहता है. ओके, नाउ वी विल स्टडी वन एग्जांपल इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक ऑफ सार्स. सार्स वायरस का एक इमेज दिया है आपको बुक में, इसलिए सार्स का मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ. इट इज अ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब क्या? रेस्पिरेशन पे इफेक्ट होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इवन मे लीड टू लंग्स फेल्यूर. ये क्यों होता है? अब हम देखते हैं कि वायरस ये कहाँ से स्प्रेड होता है. एयर से और कॉन्टैक्ट से. कॉन्टैक्ट थ्रू द कंटेमिनेटेड प्लेस. कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने छींक दिया, he sneezes, then the droplets are falling here and there, so whoever touches those droplets might has a risk of getting infected. So this is the risk of infections of viral disease. Okay, viral disease spread बहुत जल्दी होते हैं और इसीलिए उनको कंट्रोल में लाना जरूरी है. और एक डिसएडवांटेज है वायरल डिसीज का कि उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है. क्यों? क्योंकि वायरस हमारे सेल का हिस्सा हो जाता है. अगर वायरस हमारे सेल के अंदर है तो उसको मारना यानी कि हमारे सेल को मारना. गेटिंग इट? इफ वायरस इज वेरी स्मार्ट, वायरस लिव्स इनसाइड आवर ओन सेल. उसको पता है कि ये कुछ भी कर सकता है पर खुद के बॉडी को नहीं मार सकते. ह्यूमंस कुछ भी कर सकते हैं पर खुद के सेल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. तो हमारे सेल के अंदर जाके बैठ जाता है और फिर वहां पर जाके क्या करता है? उसका काम करता है. दैट इज मल्टीप्लाइज, इंक्रीजेस इट्स नंबर. सो ये है वायरल डिसीज की खासियत. ओके, बट द सिम्टम्स, नाउ वी विल सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस. ये सार्स का सिम्टम देखो क्या है? कफ, स्नीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ सार्स. ओके, सार्स अगर होता है किसी को, ये एक्चुअली ये डिसीज भी चाइना की देन है. ठीक है, ये भी चाइना में 2003 में हुआ था बट कंट्रोल हो गया. इट वाज ओनली एपिडेमिक, लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस. पेंडेमिक हो गया था, 26 कंट्रीज में इसके पेशेंट थे बट फिर भी क्यूर हो गए. ठीक है, और उसके बाद 2004 के बाद इसके केस दिखे नहीं. अब कहीं जाके ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं कि ये पहले से यही डिसीज था वो. ठीक है, सो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल टू रिड्यूस द सिम्टम्स. यानी कि अगर किसी को बुखार है तो बुखार कम करने के लिए टैबलेट्स देंगे. किसी को अगर लिवर पे स्वेलिंग है या लिवर काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो उसके लिए मेडिकल देंगे. सो ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट है. ठीक है, सो नेक्स्ट, सो दिस वाज अबाउट द वायरस एज एन इन्फेक्शियस एजेंट. प्रिवेंशन क्या है वो हम सामने देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोटोजोन. प्रोटोजोन एज एन इन्फेक्शियस एजेंट. प्रोटोजोन क्या है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्चुअली मराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं या फिर उनका एक हैबिटेट है पर्टिकुलर जहाँ पर वो अकेले रहते हैं. बट मेनी टाइम्स देर आर सम प्रोटोजोन्स विच आर टेकिंग लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन होस्ट. जैसे कि हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज अ प्रोटोजोन विच लिव्स इनसाइड द मलेरियल मॉस्किटो, दैट इज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. और वो मॉस्किटो अगर हमको बाइट करती है या सक करती है ब्लड हमारी बॉडी से, वो टाइम पे वो प्रोटोजोन हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती है. फिर उसको बॉडी इन्फेक्ट करने में, उसको बॉडी डिफेंड करने में टाइम लेती है. और इसीलिए हमको क्या होता है, मलेरिया की वैक्सीन वगैरह दी जाती थी. ठीक है, वैक्सीन बोलो या उसकी मेडिसिन दी जाती है. वो क्लोकिट रहती है, क्लोरोक्विनोन की, वो हमको दी जाती है ताकि वो हमको मलेरिया के सिम्टम्स कम हो जाए. ओके, उसी तरह एक हमको बुक में दिया है जिसको हम बोलते हैं काला आजार. ठीक है, काला आजार नाम का एक डिसीज है. काला आजार क्यों नाम होगा इसका? काला आजार, काला मतलब स्किन, ब्लैक. ओके, ब्लैक स्किन टर्न्स आउट टू बी ब्लैक स्किन. Then the liver, some organs starts swelling. Liver, then spleen, these organs starts swelling. So this is the symptom of basically the leishmania. ठीक है, और ये किससे कॉज हो रहा है? लेशमैनिया नाम के एक प्रोटोजोआ से. जो कौन इन्फेक्ट कर रहा है? सैंड फ्लाई नाम का एक इंसेक्ट. जैसे हमारा बटरफ्लाई होता है वैसे ही सैंड फ्लाई है और वो इंसेक्ट करता है. वो जैसे हमको बाइट करेगा उसी तरह से क्या हो जाएगा, वो हमको जो डिसीज है वो डिसीज लेशमैनिया का प्रोटोजोआ हमारे बॉडी में जाएगा एंड इट विल यूटिलाइज. यू कैन सी इन द इमेज इट इज फाइटिंग, द इम्यून सेल इज देयर एंड जहां पर एरो दिख रहा है वो एरो जो है वो है लेशमैनिया का प्रोटोजोआ. डिवाइड हो रहा है, एक से दो बन रहा है. ठीक है, और वो इम्यून सेल जो उसको अटैच होकर फाइट करने के लिए ट्राई कर रहा है. सो ये एक इमेज है जो हमको बुक दिया गया है. अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंशन मेजर्स क्या है? ठीक है, एक्चुअली इसके सिम्टम ज़्यादा दिखते नहीं है क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर रहता है. ठीक है, इट लिव्स इनसाइड द बॉडी, प्रोटोजोन. बट रिमूवल ऑफ दैट पैरासाइट इज नेसेसरी. वो रिमूव करना बॉडी से नेसेसरी है. वो प्रोटोजोन बॉडी से निकल जाना चाहिए. सो उसके लिए मेडिसिन रहेगी और वो मेडिसिन इफेक्टिव रही तो निकल जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट प्रोटोजोन एज एन इन्फेक्शियस एजेंट. नेक्स्ट देखो वर्म्स.
कुछ वर्म्स है जो बेनिफिशियल है, जैसे कि अर्थवर्म, दे आर कॉल्ड एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, एंड देर आर सम एट द सेम टाइम देर आर सम केसेस ऑफ वर्म्स विच आर एक्चुअली हार्मफुल। तो ऐसे हार्मफुल एक वर्म है जिसको हम कहते हैं एस्कैरियासिस। ओके, एक डिसीज है एस्कैरियासिस एक्चुअली, ठीक है, और एस्कैरिस नाम की वर्म है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, एडल्ट है, पूरी एडल्ट वर्म है, राउंड वर्म, ठीक है, राउंड है इसलिए उसको राउंड वर्म बोलते हैं। एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकोइडिस नाम की स्पीसीज है और डिसीज कॉज करती है एस्कैरियासिस। अब आपको लगेगा कि ये बॉडी के अंदर सर जाता कैसे है ना, ये बॉडी के अंदर कैसे जाता है मैं बताता हूँ। कुछ लोग इतने अनहाइजेनिक होते हैं कि हाथ नहीं धोते हैं, और गलती से अगर हमने कहीं सॉइल पे हाथ लगाया हो जहां पर ये एस्कैरियासिस के अंडे हो, ऐसी जगह जहां पर एस्कैरियासिस के एग्स हो, वहां पर अगर हमने कहीं पर गलती से हाथ लगाया, सो वो एग्स क्या हो रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेस्ट हो रहे हैं, इंजेक्शन की प्रोसेस, टेकिंग इन फूड, ओके, इंजेस्ट हो रहे हैं, एंड द इंजेस्टेड एग्स ऑफ द adult worm can lead to hatching because the favorable environment is provided in the intestine. In the intestine the favorable environment is provided. Many times it may even feed on the gut. जो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल होती है उस पर भी फीड कर सकते हैं कुछ वर्म्स, इतना पावर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे फीड ओनली ऑन द फूड दैट वी ईट, बट बहुत बार या फिर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये जो वर्म्स है, ये वर्म्स हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, सो बेसिकली दे आर ऑल्सो पैरासाइट। ये कंडीशन कब होती है, जब एग्स, एस्केरिस के एग्स हम अनहाइजेनिक फूड, कभी बॉयल ही नहीं किया, खाना ऐसे ही खा लिया, पहले लोग करते थे, तो उस तरह से ये डिसीज हो सकता है। ओके, अब इसके ऊपर मेडिसिन कौन सी है, एंटी, ये हेलमिंथ है, मैंने आपको बोला ये वर्म है, सो एंटी हेलमिंथल मेडिसिन आर देयर, एंटी हेलमिंथल ड्रग्स। ओके, इसका मतलब क्या है, एंटी हेलमिंथ मतलब वर्म्स के लिए किल करने वाली। ओके, सो दे कैन किल द वर्म्स, सो सच ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर किलिंग एन infectious disease caused by a worm. Okay, so and many natural methods are there to kill them. गरम गरम पानी पी लिया, हनी खाया है, या फिर रोज हम गर्म पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी नहीं रहे, सो मेनी वर्म्स कैन बी डेड। बट इसका एक ये होता है जो क्या बोल सकते हैं हम, इफेक्ट बॉडी के ऊपर, ये वोमिटिंग बहुत होता है, और ये वर्म्स जो होते हैं अगर उसने भी रिप्रोड्यूस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल द एग्स दैट हैज हैच्ड एंड नाउ दैट ऑल्सो बिकेम मैच्योर विदाउट नोइंग, और उसने भी एग्स अगर हैच कर लिए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर बहुत सारे वर्म हो जाते हैं। थ्रू द स्टूल ऑल्सो वर्म्स आर पास्ड, थ्रू द वोमिट ऑल्सो वर्म्स आर पास्ड, सो दिस कंडीशन कैन बी डेंजरस। ओके, सो वर्म्स ऑल्सो कैन बी एन स्ट्रॉन्ग डेंजरस एजेंट्स फॉर द इन्फेक्शंस। ओके, इन्फेक्शंस कॉज करने के लिए वर्म्स का भी रोल है। देन बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एक्चुअली बहुत डेंजरस रहते हैं, ठीक है। टीबी के पेशेंट्स, कॉलेरा के पेशेंट्स, और एक्ने, स्किन प्रॉब्लम्स, दीज आर ऑल अराइजिंग ड्यू टू द बैक्टीरिया। देयर आर मेनी मोर विच आर अराइजिंग ड्यू टू द बैक्टीरिया, बट यहाँ पर समझने जैसी बात है कि बैक्टीरियल डिसीजेस को कंट्रोल में क्यों लाया गया, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर such medicine which kill the growth of the bacteria or which block the pathways। समझ लो, आज हमारा बॉडी का पाथवे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हमारे बॉडी को नॉर्मल रहने के लिए क्या जरूरत है, ठीक है, मेरे को सेल वॉल, हमारे सेल को सेल वॉल बनाना पड़ता है, वैसे ही बैक्टीरिया की सेल को भी सेल वॉल बनाना पड़ता होगा। और अगर हम वो सेल वॉल बनाने के मैकेनिज्म को किसी तरह ब्लॉक कर सके, देन वी हैव सक्सीडेड इन मेकिंग द सेल डेड। वो बैक्टीरिया की डेथ फोर्स करने में हम सक्सेसफुल हो गए। Getting it? So antibiotics work like this. Antibiotic has an effect on the mechanisms of the bacteria, on the cellular mechanisms on the bacteria. That's why बैक्टीरियल डिसीज होते तो है, बट उनको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो। ऑपरेशंस, सर्जरीज, इसके बाद भी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है ताकि कोई भी बैक्टीरिया का हमको इन्फेक्शन ना हो सके। ऑलराइट, सो दिस इज बैक्टीरिया डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज प्रूवन एंड ग्रेट अचीवमेंट। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अब ये पूरे इन्फेक्शियस डिसीज की ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ऑल द इन्फेक्शियस डिसीजेस और इनको ट्रीट कैसे करें। एंटीबायोटिक्स हैव बीन यूज्ड टू ब्लॉक सम बायोकेमिकल पाथवेज ऑफ बैक्टीरिया व्हिच प्रूव टू बी इफेक्टिव। जैसा अभी मैंने आपको बोला कि कोई सेल वॉल बनाने की प्रोसेस है उनकी, तो उन पे रोक लगाओ, और इसका इफेक्ट भी होगा कि हम तो बॉडी में सेल वॉल बनाते नहीं है, ह्यूमंस लैक सेल वॉल, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, तो हमारे बॉडी पे भी इफेक्ट नहीं होगा एंटीबायोटिक्स का। गेटिंग इट? वी हैव टू टारगेट द सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ बैक्टीरिया की हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी तो है ही नहीं, तो उसका हमारी बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं। एंटीबायोटिक्स वर्क लाइक दिस। एंड सिमिलरली देयर आर ड्रग्स टू किल प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्स ऑल्सो, बट देयर इज अ बैड न्यूज विच इज अगेन ड्यू टू द कोविड-19। इसमें भी हम लोग इसी वजह से सफर कर रहे हैं, दैट देयर आर वेरी फ्यू, और आई कैन से देयर इज नो एंटीवायरल
perfect antiviral drug that can cure a viral disease. ऐसा कोई भी ड्रग एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। और ये क्यों है? बिकॉज वायरसेस खुद के उनके कुछ बहुत ही कम प्रोसेस है। उनको अगर रिप्रोड्यूस करना है तो हमारे डीएनए के अंदर उनका डीएनए डाल देंगे, जैसे हमारा डीएनए मल्टीप्लाई होगा वैसे उनका भी हो जाएगा। जैसे हमारा सेल डिवाइड होता है 1 से 2, वैसे वायरस भी 1 से साथ 2 हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे सेल का हिस्सा बन गए हैं। दे बिकम अ पार्ट ऑफ द होस्ट। ओके, सो दैट इज वाई इट इज वेरी हार्ड टू किल वायरसेस। ओके, बिकॉज एंटीवायरल हम बनाएंगे भी तो किसको टारगेट रखे, है ना? वायरस को हम टारगेट रख ही नहीं सकते, क्योंकि वायरस तो हमारी बॉडी का हिस्सा हो गया। उनको मारना यानी फिर हमारी बॉडी को ही मारना, दिस इज नॉट नो लॉजिक इनसाइड इट। दैट इज वाई एंटीवायरल नहीं बनते, बट हाँ सिम्टम्स जो है उस सिम्टम के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। ओके, लेट्स लुक एट हाउ नो प्रिवेंशन, कि कैसे हम इस डिसीजेस से बच सकते हैं। एक्सपोजर से ही बचे। बेस्ट एग्जांपल कोविड-19, ठीक है? कोविड-19 के एक्सपोजर से कैसे बचना है? घर पे ही रहे, जितने कम दोस्तों के साथ मिलना है उतने कम दोस्तों के साथ मिलो, जितना कम कांटेक्ट हो सके उतना कम रखो, मास्क हमेशा से रखो, सैनिटाइज करो प्रॉपरली, हैव पर्सनल हाइजीन्स, व्हाटएवर यू आर ईटिंग हैव लिमिटेशंस। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है। कंट्रोल योरसेल्फ बिकॉज देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल। ठीक है, वैक्सीन क्या है मैं बताता हूँ आपको। टेकिंग गुड केयर ऑफ वन सेल्फ, ये भी है कि हम हमारे ध्यान रखें। न्यूट्रिशन कम नहीं होना चाहिए, सब घर पे स्टोर करके रखो, न्यूट्रिट रहो, हेल्दी रहो, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ओके, इफ एनी डिसीज, फॉर एनी डिसीज, दिस इज फॉर ऑल डिसीजेस। ओके, इम्यूनाइजेशन, ये इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइज करना मतलब क्या, कि बॉडी को वही वायरस पहले ही दिखा देना। ठीक है, कोरोना वायरस को बोलते हैं नोवेल कोरोना वायरस बोला जाता था। नोवेल मतलब क्या? नया। नया किसके लिए? हमारी बॉडी के लिए। नोवेल क्यों बोल रहे थे? कि वो नया है हमारे बॉडी के लिए, इसीलिए बॉडी को पता नहीं है कि वो कैसे दिखता है। बॉडी को और पता लग गया, हाँ ये ABCD, अच्छा इतने 4 लेटर्स का बना है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बना देगी, बॉडी खुद ही। देयर इज बेस्ट थिंग अबाउट आवर ह्यूमन बॉडी इज आवर बॉडी इज केपेबल टू मेक ऑल काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, एंटीवायरल, सब पूरे मेडिसिन जो है हम खाते हैं बाहर से, वो हमारी बॉडी केपेबल होती है बनाने के लिए। ठीक है, द बेस्ट मेडिसिन फॉर आवर सेल्फ इज प्रिपेयर्ड इनसाइड आवर बॉडी ओनली। ठीक है, बट इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन मतलब वही वायरस इन एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी को दिया जाए। वही वायरस, द वायरस ऑफ द कोरोना और द वायरस ऑफ एनी अदर वायरल डिसीज यू कैन टेक, लाइक पोलियो। ठीक है, पोलियो के डोज दिए जाते थे। पहले डोज में, पोलियो का पहले डोज 2-3 डोज दिए होंगे आपको भी, आपने भी लिए होंगे। ठीक है, पहले डोज में हमको पता हो जाता है बॉडी को कि अच्छा ऐसा दिखता है, तो पहले डोज में थोड़ा कम इफेक्टिव मेडिसिन रिलीज करती है हमारी बॉडी। दूसरा डोज जब आएगा तो और इफेक्टिव, और तीसरा डोज जब आएगा तो पूरी तरह से उसको किल करने की पावर रखती है हमारी बॉडी। ठीक है, सो इसी तरह से 2-3 डोजेस में पोलियो भी हमको दिया जाता था। ठीक है, सो दिस वे इम्यूनाइजेशन, हमारे बॉडी को अगर पता चल गया कि वो वायरस कैसा दिखता है, और बॉडी इटसेल्फ कैन मेक अ वैक्सीन फॉर इट, और इन अदर वर्ड्स कैन मेक अ एंटीबॉडी फॉर इट एंड किल दैट डिसीज। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रिवेंशन, कि हम प्रिवेंट कैसे करें, कि पहले ही इम्यूनाइज रहे। First of all, increase your immunity by taking good care of the health and then get immunized. Okay. At last, prevention is always better than cure. ठीक है, प्रिवेंशन हमेशा बेटर है क्यूर से। उतना टैबलेट लो, उतना रूल्स फॉलो करो, डोंट डू दैट। जस्ट गेट safe, just be safe and prevent yourself from getting infected to that disease. Okay, that's it. Okay, that's it for today. I hope you have understood all the topics. All right, thank you.